नेक्स्ट, रेडियम इज एन एलिमेंट बिलो बेरियम इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इट इज बिलो ग्रुप 2, वो बात, इट इज बिलो बेरियम इन ग्रुप 2, वो बात सही है। तो इसका मतलब कि इसके जो भी रिएक्शंस होंगे जो पूछे जाएंगे वो सिमिलर टू बेरियम ही होंगे। तो क्या पूछा गया है? विच इक्वेशन शोज व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड रेडियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। So when group 2 elements are heated strongly, group 2 nitrates, they are converted into their oxide, produces NO2 and produces O2. So based on this, ऑप्शन बी और ए गलत हो गया क्योंकि NO2 उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सी और डी में NO2 और O2 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मोलर रेशियो क्या होगा? मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्शन इज इफ 1 mole of nitrate is decomposed, 2 moles of NO2 and half moles of O2 is produced. So based on what they have used, if 2 moles are burned, then 4 moles of NO2 and 1 mole of O2 is produced. And if 4 moles are burned, so 8 moles of NO2 and 2 moles of O2 should be produced. So option C should contain the molar ratio of NO2 to O2 4:1, जो कि है, which is it is correct. And option D should contain the ratio 8:2. 8 is correct, 2 is not correct. They have given 3. So based on our findings, the correct option for this question is option C. Next, X is a mixture of two compounds of group 2 elements. X undergoes thermal decomposition to produce a white solid and only two gaseous products. Two gaseous products का मतलब nitrate है. One of the gaseous products relights a glowing splint, which is oxygen. What could be the components of mixture X? X is a mixture of two compounds of group 2 elements. That means it should be a mixture of two nitrates, right? So A, chloride and carbonate, no. B, carbonate and nitrate, no. C, nitrate and nitrate, yes. D, oxide and oxide, no. So the correct option based on our findings is option C. Always remember, whenever there are two gaseous products, those products are NO2 and O2 in the ratio 2 is to half if 1 mole of the nitrate is decomposed. Next, which mass of solid residue is obtained from thermal decomposition of 4.10 grams of anhydrous calcium nitrate? अब इन्होंने which mass of solid residue is obtained, तो इसके लिए क्या करना होगा? कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसका डिकम्पोजिशन इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। CaNO3 twice produces CaO plus 2 moles of NO2 plus half moles of O2. अब इन्होंने बोला है विच मास ऑफ सॉलिड रेजिड्यूज ऑब्टेन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले इनके एमआर निकालें। कैल्शियम ऑक्साइड वुड बी 40.1 जो कि कैल्शियम का AR है प्लस 16, दिस विल गिव अस 56.1। तो 56.1 इज द MR ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए we have 6 oxygen, so 6 into 16, that is 96, plus there are 2 nitrogen, so 14 to the 28 plus 40.1, this will give us a mass of 164.1, 164.1, so 164.1 produces 56.1 gram, so 4.10 will produce how much? So this will be 4.10 divided by 164.1 multiplied by 56.1. This comes to 1.40 grams. So based on our calculation, the correct option for this question is option C. Next, when 3 grams of anhydrous nitrate of a group 2 metal is decomposed, 1.53 grams of gas is produced. What is the nitrate compound? Okay, इसको निकालने के लिए हम लोगों को अब सबके जो है मासेस एमआर्स वो निकालने होंगे। तो 3 ग्राम व्हेन 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस नाइट्रेट इज डिकम्पोज 1.5 ग्राम्स ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, मास ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो बेरिलियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब बेरिलियम जो है दैट रिएक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो
अगर बी सी या डी में से ऑप्शन नहीं हुआ तो हम ए को टच करेंगे, क्योंकि ए में जो है बेरिलियम नाइट्रेट डज नॉट प्रोड्यूस बेरिलियम ऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस बेरिलियम नाइट्राइड BeNO2 twice, which is a reaction that we haven't studied. So A को सेपरेट करते हुए हम B, C और D में देखते हैं. तो in these cases कैल्शियम नाइट्रेट में जो रिएक्शन है, बल्कि किसी भी नाइट्रेट को ले लेते हैं, मेटल लेते हैं, MnO3 twice gives MO plus 2NO2 plus half O2. So total MR of 2 moles of NO2 and half moles of O2 is, अब नाइट्रोजन 2 है तो 28 प्लस ऑक्सीजन 4 और एक 5 है तो 16 into 5 is 80. So this is 108. इनका जो कंबाइंड MR है वो 108 है. तो अब वन बाय वन कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सोडियम नाइट्रेट का हमें एमआर से देखना होगा कि रेशियो क्या निकलता है. तो फॉर कैल्शियम नाइट्रेट सबसे पहले नाइट्रेट का निकाल लेते हैं, NO3 ट्वाइस, तो दिस विल बी 96 फॉर ऑक्सीजन प्लस 28 फॉर नाइट्रोजन, दिस इज 124. तो अब कैल्शियम प्लस 124, कैल्शियम इज 40.1 प्लस 124 gives 164.1. For magnesium it is 24.3, so 124 plus 24.3 is 148.3. And for strontium we will need to refer the periodic table. So the AR of strontium is 87.6, so 87.6 plus 124 gives 211.6. अब ये देखना है वन बाय वन रख के, if 164.1 produces 108, then 3 grams will produce how much? तो इसका इक्वेशन हो जाएगी 3 divided by MR into 108, and this should be equal to 1.53 grams. तो अब वन बाय वन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 divided by 164.1 multiplied by 108 gives us 1.97, और आना क्या चाहिए 1.53. तो इट इज नॉट कैल्शियम नाइट्रेट. फिर अब मैग्नीशियम के लिए रखते हैं, 3 divided by 148.3 multiplied by 108, this gives us 2.18 grams. It is not magnesium nitrate. अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने बेरिलियम नाइट्रेट को कंसिडर नहीं किया. मोस्ट लाइकली वो आंसर नहीं है बिकॉज उसका रिएक्शन ही अलग होता है. आप स्टोरेंशियम नाइट्रेट को रख के देखते हैं, इसमें हो जाएगा 3 divided by 211.6 multiplied by 108, this gives us 1.53, which is the answer we were looking for. Therefore the correct option based on our calculations for this question is option D. ऑप्शन ए को नहीं होना था, ये पहले से पता था क्योंकि बेरिलियम का रिएक्शन ही डिफरेंट होता है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप हैज अ डिफरेंट रिएक्शन देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. इसी वजह से बेरिलियम को हम बाकी के साथ इन ग्रुप को नहीं पढ़ते हैं, हम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोरेंशियम और बेरियम को पढ़ते हैं. इसी वजह से बेरिलियम को साइड पर रख दिया था कि अगर बाकी तीनों नहीं हुए तो फिर उसके इक्वेशन को देखना पड़ेगा. सिंस वी डोंट नो द इक्वेशंस, तो इट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. Next, a sample of anhydrous calcium nitrate is placed in a test tube and heated in a roaring burner Bunsen flame until it decomposes. ठीक है, calcium nitrate को decompose किया. The description of the gas in the test tube is then noted. A glowing splint is then put into the test tube and any changes are noted. Which observations are correct? Description of the gas in the tube. NO2 is a brown colored gas. तो ऑप्शंस ए और बी सही हो सकते हैं, सी और डी नहीं होंगे सही. तो इससे सी और डी एलिमिनेट हो गए, ए और बी में से कोई होगा. रिजल्ट ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट. अब तो ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट में हम लोगों का जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है इट रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर. तो ऑप्शन ए है द स्प्लिंट गोज आउट, नो. ऑप्शन बी है द स्प्लिंट रीलाइट्स, यस.
So the correct option for this question based on our findings is option B. Next, a 4-gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate is heated strongly until there is no further change. A solid residue of mass 1.37 grams is formed. Which metal is present? Okay. इसके लिए anhydrous group 2 metal nitrate is heated strongly. बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम वन बाय वन सबको देखना पड़ेगा. तो इक्वेशन क्या होगी? मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग produces metal oxide plus NO2 plus O2. 2 moles of NO2 and half moles of O2. अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि 4 grams will produce 1.37 grams. Right? 4 grams will produce 1.37 grams. तो MR जो भी हम लोग रखेंगे of the nitrate, this should produce the MR of the metal oxide. तो यहाँ पे दो हमारे पास अननोन है, MR2 या MR1 लिख देते हैं, MR2. तो इक्वेशन क्या बनेगी? MR4 divided by MR1 into MR2 equals 1.37. तो अब 1 by 1 दोनों मेटल्स को रख के देखते हैं. MR1 is the nitrate and MR2 is the oxide. तो पहले हो गया बेरियम. बेरियम का AR है फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल 137.3. तो MR2 इसका हो गया 137.3 प्लस 16, ये हो गया 153.3. और MR1 के लिए हम लोग सबसे पहले नाइट्रेट का वापस निकाल लेते हैं. तो NO3 ट्वाइस होगा 96 प्लस 28 विच इज 124. अब MR1 हो जाएगा 124 प्लस 137.3 विच इज 261.3. तो अब कैलकुलेट करते हैं. 4 divided by 261.3 multiplied by 153.3, this gives us 2.34 और आंसर आना चाहिए 1.37. so it is not barium. अब नेक्स्ट बेरियम नहीं है, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे कैल्शियम. कैल्शियम का जो AR है वो है 40.1. तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया 40.1 plus 16 which is 56.1. और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका कैल्शियम का नाइट्रेट. तो और कैल्शियम का नाइट्रेट के लिए हम लोग करेंगे 124 प्लस 40.1 विच इज 164.1. तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 164.1 मल्टीप्लाइड बाय 56.1, इससे आंसर आ रहा है 1.37 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी. ठीक है कि इस रेशियो से आंसर आना चाहिए 1.37. therefore based on our calculations the correct answer for this question is option B. और क्योंकि B में आ गया इसलिए C और D को अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है because based in this calculation calcium gave us the required answer as given in the question 1.37 grams.